Hello, grade 5. This is our sixth lecture. Today is 10th April, Saturday. Today's objectives are improving our listening and speaking skills, trying to answer some comprehension questions. So let's begin our lecture today. Grade 5, open up your textbook to page number 12, Part A, Question 1. To whom did the woods belong? So remember yesterday we read a poem called Stopping by the Woods on a Snowy Evening. So the first question is, to whom did the woods belong? कि जो वो woods थी, जो वो जंगल था, वो किसका था? Do you know? Or do you remember? The speaker says the wood belongs to a man who lives in the village. वो हमारा speaker कहता है कि ये जो woods हैं ये किसी ऐसे आदमी की हैं जो कि village में रहता है. Okay? B. Did the rider see a farmhouse? क्या राइडर जो था हमारा स्पीकर था वो वहाँ पे इसलिए रुका क्योंकि उसको वहाँ पर एक फार्म हाउस नज़र आया था? Did the rider see a farmhouse? No. वहाँ पे कोई भी फार्म हाउस नहीं था. Why did he stop? Because he wanted to look at the woods filling up with the snow. वो सिर्फ वहाँ पे इसलिए रुका था क्योंकि वो वहाँ पे वुड्स को देखना चाह रहा था जो कि स्नो से फिल हो रही थी. ठीक है. C. During which season or month do you think this event took place? Give a reason for your answer. आपके ख्याल से ये सब वाक़या जब हमारा स्पीकर जो था वो वहाँ पे रुका, ये किस मौसम में सब हो रहा था? आपको जो भी आंसर होगा आपको उसकी रीज़न भी देनी है, वजह भी देनी है. सो व्हाट डू यू थिंक? डू यू हैव एनी क्लू कि ये कौन सा मौसम था जब ये सब हो रहा था? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू लुक एट द टाइटल ऑफ योर पोएम, that is stopping by the woods on a snowy evening. So the first clue that you get is from the title of the poem. अगर आप अपने पोएम की टाइटल को देखें तो आपको पहला क्लू वहीं से मिल जाएगा कि पोएम का नाम ही ये कि stopping by the woods on a snowy evening. So it is a snowy evening and that means it's winter. Again, if you go back to your text, अगर आप अपनी पोएम को वापस खोलें, then you will find many other clues as well, which will tell you that it's winter. First of all, the first clue is that it's called a snowy evening. सबसे पहला clue तो ये है कि उसको वो देखें snowy evening कह रहा है. Again, fill up with snow कि वो snow से भर रही हैं पूरा जंगल. Between the woods and frozen lake, लेक जो है वो फ्रीज़ है. वाई? बिकॉज इट्स कोल्ड. डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. अगेन वो कह रहे हैं साल की सबसे डार्क इवनिंग है और आपको पता है सर्दियों में जल्दी शामें हो जाती हैं. ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक. ईजी विंड और डाउनी फ्लेक जो है ये सिर्फ सर्दियों में होते हैं. ठीक है. सो दीज आर ऑल द क्लूज दैट यू कैन गेट फ्रॉम द टेक्स्ट दैट टेल्स अस दैट इट्स विंटर टाइम. ठीक है. ये सारे आपके पास क्लूज हैं जो हमें बताते हैं कि सर्दियों का मौसम है या ठंड है, बर्फ़ हो रही है बाहर. ठीक है. अंडरस्टूड. Now let's move to part D. What mood of or atmosphere does this poem create? अच्छा, after reading this poem or when you're reading this poem, what do you think is the mood of the poem? Like इस poem का जो mood है, is it happy? Is it sad? Is it magical? Is it mysterious? Thoughtful or quiet? कि ये poem का जो mood है वो किस तरह का है. देखिए आप imagine करें कि there is a man. He is traveling with his horse. He is passing through a road and suddenly he sees a land full of trees and it's winters and he looks at the woods and they're filling up with snow. So he stops there and he goes inside and he really likes it. He finds it very beautiful. So what kind of a mood is it? The mood of the poem is very mysterious. It's very thoughtful. It's quiet. इट्स मैजिकल. ठीक है. सो हमारी पोएम का मूड किस तरह क्रिएट हो रहा है? बहुत ही मिस्टीरियस हो रहा है. मिस्टीरियस क्यों हो रहा है? बिकॉज लुक, देयर इज दिस पर्सन, ही सडनली स्टॉप्स इन द वर्ड्स विदाउट एनी रीजन जस्ट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू सी द वर्ड्स फिल अप विद स्नो. एंड इट्स वेरी thoughtful. Thoughtful means कि the person is very quiet. He's thinking about the beauty of the nature. So that is why the poem creates a very mysterious, a magical and a thoughtful, quiet atmosphere. Okay? Now, let's move to part E. Why do you think the rider stopped by the woods? आपके ख्याल से वो स्पीकर जो था, जो राइडर था, वो वुड्स के पास क्यों रुका था? Why did he stop there? Because he wanted to watch the woods fill up with snow.
क्योंकि वो चाह रहा था कि वो उस वुड को देखे, because he found the words, he found the whole atmosphere very pretty and attractive, and he wanted to stop and see the woods filling up with snow. Okay? F. Why was the horse puzzled? वो एकदम से इसको जो घोड़ा था वो इतना पजल क्यों हो गया? Because they stopped विदाउट एनी फार्म हाउस नियर. वो एकदम से रुक गए थे ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई भी फार्म हाउस नहीं था. सो देयर वाज नो नीड फॉर अ ब्रेक और for a lunch break, for an eating break, for a rest break, and suddenly they stopped on a spot. That is why the horse got really puzzled that there wasn't any farmhouse near. So why were they stopping? Okay. G. Where do you think the rider was going? आपके ख्याल से वो राइडर कहाँ जा रहा था? Do you have any idea? The poem does not really tell us where he was going, so we can just take a guess. He might be going on some business trip. वो किसी business trip पे भी जा रहा होगा. Or maybe he's coming back from a business trip. क्या पता वो business trip से वापस आ रहा हो, so he's going back to home. Okay? Now let's move to our question number 2. What is the rhyming pattern in the poem? Do all the stanzas have the same pattern? अब आपको ने राइमिंग पैटर्न फाइंड आउट करना है. दिस इज़ वेरी इजी, हम पहले भी कर चुके हैं. सो लेट्स मूव बैक टू आवर पोएम. अपनी पोएम पे वापस आए, पेज नंबर 11 पे, एंड लेट्स ट्राई टू फिगर आउट द राइमिंग पैटर्न ऑफ द पोएम. ओके, सो हुज वर्ड्स दीज आर, आई थिंक आई नो. सो आपका लास्ट वर्ड जो है वो इट्स नो. तो ये आपकी एक राइमिंग साउंड है, इसके आगे ए लिखें. हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो. सो नो दो दोनों राइम कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनका राइमिंग पैटर्न सेम है. तो इधर भी आप ए लिख दें. He will not see me stopping here. Here does not rhyme with no or do. तो ये अलहदा साउंड आ रही है, तो आप बी लिखें. To watch his words fill up with snow. No, do, snow, ये तीनों राइम करें तो आप इधर ए लिखोगे. ठीक है. सो आपके फर्स्ट स्टैंजा का राइमिंग पैटर्न है ए ए बी ए. ठीक है. Now let's move to our second stanza. My little horse must think it queer. ये आपकी सेम क्वेयर और हेयर ये दोनों राइम कर रहे हैं, तो आप बी लिखें. टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नेयर, क्वेयर नेयर. अगेन ये ड्रीम सेम राइमिंग पैटर्न है, तो आप बी लिखोगे. बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक. लेक ये बिल्कुल साउंड डिफरेंट है, ना तो ये नो से राइम कर रही है, ना ही ये क्वेयर से राइम कर रही है. इट्स अ डिफरेंट साउंड, तो आप सी लिखोगे. द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द एयर, क्वेयर नेयर एयर राइम कर रहे हैं, तो आप बी लिखोगे. ठीक है. सो आपके सेकेंड स्टैंजा का राइमिंग पैटर्न है बी बी सी बी. ओके. नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड स्टैंजा. ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक. शेक लेक दोनों राइम कर रहे हैं, सो दिस इज सी. टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक. शेक मिस्टेक दोनों राइम कर रहे हैं, दिस इज अगेन सी. The only other sounds the sweep. So sweep does not rhyme with shake or mistake. So this is a very totally different new sound. So you'll put it as D. Of easy wind and downy flake. Flake, mistake, shake. They rhyme together. So you will also put C here. Okay. So the rhyming pattern of the third stanza is C C D C. Let's move to our fourth stanza. The woods are lovely, dark and deep. Deep and sweep are rhyming together, so you will mark it as D. But I have promises to keep. Deep, keep, D. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. These are all D's. These all, the last stanza is rhyming together with each other. ये last stanza आपका rhyme कर रहा है, तो ये सब क्या है? D, 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 D. तो this is our rhyming scheme. तो ये आपने rhyming scheme figure out कर ली. ठीक है. So let's move back to your page 12. Question 3. He gives his harness bells a shake to ask if there's some mistake. वो अपनी जो हार्नेस की जो बेल होती है उसको हिलाता है, ये जाहिर करने के लिए, ये पूछने के लिए क्या हमने कोई गलती कर दी है. क्वेश्चन ए. हु इज़ द ही द पोएट इज टॉक स्पीकिंग अबाउट. ही कौन है यहाँ पर, किसके बारे में बात हो रही है, किसने अपने हार्नेस की बेल को शेक किया था? द हॉर्स. ओके.
बी व्हाट इज़ अ हार्नेस. अब वो पूछ रहे हैं हार्नेस क्या होता है. सो इफ़ यू गो बैक टू योर पोइम, अगर आप अपनी पोइम पे वापस जाएं पेज नंबर 11 पे, यू कैन फाइंड द डेफिनेशन ऑफ हार्नेस. द लेदर स्ट्रैप्स एंड बेल्ट्स यूज टू कंट्रोल अ हॉर्स. ये जो लेदर स्ट्रैप्स होती हैं किसी भी जानवर की जब गले में डालते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, यू कैन सी इट हेयर एज वेल, उसे हम हार्नेस कहते हैं. ठीक है, मूव बैक टू योर पेज. व्हाट इज़ द पॉसिबल मिस्टेक. वो क्या मिस्टेक हुई है उस घोड़े से, या वो क्या कह रहा है कि वो ऐसे अपनी हार्नेस बेल्ट क्यों हिला रहा है, क्या मिस्टेक को जाहिर करने की, ये पूछने की वो कोशिश कर रहा है. ही इज़ आस्किंग इफ़ दे हैव मेड अ मिस्टेक बाय स्टॉपिंग हेयर. वो ये पूछ रहा है कि क्या हमने गलती कर दी है, हम यहाँ पे रुक गए, यहाँ पे तो कोई नियर बाय फार्म हाउस है ही नहीं. ओके, सो दैट इज़ व्हाट ही इज़ काइंड ऑफ आस्किंग इफ़ देयर हैज़ बीन अ मिस्टेक मेड. Understood? So that was all for today, grade 5. I hope you understood your today's lecture.